انتخابات کے اگلے مرحلے میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ انتخابی عملے سمیت ریٹرننگ افسران اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن سیکٹر سمیت صوبائی سطح پر مانیٹرنگ سیل قائم، ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کا سالانہ اجلاس، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم ٹریڈ ٹیگ $1 ٹریلین کے وعدے کے موضوع پر کلیدی خطاب اور مختلف حکومتی اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ نگراں وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف کی سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت، بین الاقوامی اداروں، عالمی تنظیمی عہدیداران سے اہم سائیڈ لائن ملاقاتیں، پاکستان سٹارٹ اپس فنڈ میں تعاون، رکن ممالک کے مابین مشترکہ کلاؤڈ سروسز پر اہم پیش رفت متوقع ہے۔ فری لانسنگ، اسکل ڈیولپمنٹ اور ای کامرس میں پاکستانی ذہانت کی دنیا معترف، ڈاکٹر عمر سیف۔ پاکستانی سٹارٹ اپس میں 2023 میں $70 ملین سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ نگران حکومت نے آئی ٹی کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے $2 ارب کا پہلا پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ شروع کیا۔ جرمنی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اجتماعی ذہن سازی پاکستان میں مقامی حکومتوں کو ڈیجیٹل تبدیلی کو مضبوط بنانے کے قابل بنائے گی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی کا سیوک ہیکاتھون کانفرنس سے خطاب۔ نگراں وزیر خارجہ آج سے 22 جنوری تک کمپالا یوگنڈا کا دورہ کر رہے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی غیر وابستہ ممالک کی تحریک کے سربراہان مملکت کے 19ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 21 سے 22 جنوری کو ہونے والے تیسرے جنوبی سربراہی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ 8 روپے انہوں نے کم کیا، انشاءاللہ کوئی کمی آئے گی، چیزوں میں بھی کمی آئے گی، ٹھیک ہے۔ مزید اور سستا ہونے سے ہم جیسے مزدوروں کو فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی خوشحالی ملے گی۔ پیٹرول کی قیمت میں، اپنے فیول ایڈجسٹ کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو ہم چیزوں کے ان کے اوپر براہ راست اثرات پڑتے ہیں، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ اس میں مزید کمی آنی چاہیے اور آگے پبلک کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ اب کمی ہوئی ہے نا انشاءاللہ تعالی، میرے دیکھنے میں سبزی کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی، کرایوں کے نرخوں میں بھی کمی ہوگی۔ حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف، پیٹرول کی قیمت میں $8 فی لیٹر کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار۔ غزہ میں انسانیت کا قتل عام جاری، مظلوم فلسطینیوں پر حملوں میں تیزی۔ خان یونس اور رفح پر صہیونی فوج کی رات بھر بمباری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 132 شہید، مجموعی تعداد 24,000 سے بڑھ گئی۔ اقوام متحدہ نے صورتحال کے تباہ کن نتائج برآمد ہونے سے متعلق خبردار کر دیا۔ بھارت کا جدید ڈرون طیارہ بنانے کا خواب چکنا چور، 2011 میں شروع ہونے والا تاپس پروجیکٹ بری طرح سے ناکام ہونے کے بعد بند کر دیا گیا۔ منصوبے پر 1,786 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ مودی حکومت ماضی میں بھی ارجن ٹینک اور تیجا جہاز سمیت ایسے کئی منصوبوں پر اربوں روپے ڈبو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا گنگا رام اور جنرل اسپتال کا دورہ، اپگریڈیشن کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے وارڈز، آپریشن تھیٹرز اور دیگر شعبوں میں کام پر پیش رفت کا مشاہدہ کیا۔ ہر لمحہ قیمتی ہے، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ گنگا رام اور جنرل اسپتال ٹائم لائن کے اندر مکمل چاہیے۔ اپگریڈیشن کے کاموں میں معیار کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی۔ رائل سعودی لینڈ فورسز کا دستہ فوجی مشقوں میں شرکت کرنے کے لیے لاہور پہنچ گیا۔ دونوں افواج مشترکہ مشقی تربیت اوکاڑا گیریجن اور خیرپور ٹامے والی میں کریں گی۔ مشقوں کا مقصد ایک جامع تربیتی پروگرام کے ذریعے عسکری تربیت، ہنر اور مہارت کو آپس میں بانٹنا ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی، 778 افغان شہریوں پر مشتمل مزید 72 خاندان اپنے وطن لوٹ گئے۔ پاکستان چھوڑ کر جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,68,929 ہو گئی۔
اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو استعمال کرنے والے مسافروں میں ریکارڈ اضافہ۔ سال 2023 کے دوران 60 لاکھ مسافروں نے اسلام آباد ایئرپورٹ استعمال کیا۔ آپریشنل ہونے کے بعد ایئرپورٹ استعمال کرنے والے مسافروں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ مجموعی طور پر 2023 میں اسلام آباد ایئرپورٹ نے 31,000 پروازیں اور 60 لاکھ سے زیادہ مسافروں کو ہینڈل کیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف ملک گیر مہم جاری۔ 31 دسمبر سے 7 جنوری کے دوران 3,929 کلو منشیات ضبط، 26 ملزمان گرفتار۔ ستمبر سے جاری مہم میں اب تک مجموعی طور پر 8,19,000 کلو سے زائد منشیات برآمد کی گئی ہے، جبکہ 716 ملزمان بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 کرکٹ سیریز تیسرا میچ کل ڈونیڈن میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کا پریکٹس سیشن۔ فاسٹ بولر عباس افریدی انجری کے باعث تیسرے میچ سے باہر۔ 5 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-0 کی برتری حاصل۔ سیریز دکھا رہا ہے PTV اسپورٹس HD براہ راست۔ سعودی عرب میں ڈاکار موٹر ریلی 8واں مرحلہ سویڈن کے میٹیاس ایکسٹروم نے جیت لیا۔ اسپین کے کارلوس سینز مجموعی برتری میں اضافہ کرنے میں کامیاب۔ موٹر سائیکل کیٹیگری میں ارجنٹینا کے کیون بیناوائڈس فاتح رہے۔ ریلی کے دوسرے مرحلے کے دوران حادثے کا شکار ہونے والے ہسپانوی موٹر سائیکلسٹ کارلوس فالکن ایک ہفتے تک کوما میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ It is with great sadness that we learn today from his family of the death of Spanish rider Carlos Falcon. اور مایا ناز فٹ بالر ارجنٹینا کے لیونل میسی کا ایک اور اعزاز، تیسری مرتبہ سال کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ خواتین میں اسپین کی ایتانا کو سال کی بہترین خاتون فٹ بالر قرار پائیں۔ پیپ گارڈیولو مینز اور سارینا ویمنز ٹیم کے بہترین کوچ، یاسین بونو اور میری ایپریس گول کیپر آف دا ایئر کا ایوارڈ حاصل کر سکے۔ And the winner is Mary Epps. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ چوہدری اور میں ہوں مناظر حسین۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین GT روڈ پر۔ تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر۔ ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے عام انتخابات 2024 کی، جس کے سلسلے میں انتخابات کے اگلے مرحلے میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے ڈیٹیل جانیں گے اسلام آباد میں موجود اپنے نمائندے فہد جاوید سے۔ جی فہد، بتائے گا پہلے جتنے بھی مراحل ہیں وہ انتہائی خوش اسلوبی سے گزر چکے ہیں، اب بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل جو ہے شروع ہو چکا ہے، اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ جی، عام انتخابات 2024 کے لیے قومی اسمبلی کی 10 اقلیتی نشستوں کے لیے 37 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں، جس کی ابتدائی فہرست الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے۔ ان امیدواروں کی حتمی فہرست ہفتے کے روز جاری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کے دفاتر ہیں اس کے اندر جو پولنگ سٹیشن کے حوالے سے اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کا آج آخری دن ہے، جس کے بعد الیکشن سے 15 دن قبل جو پولنگ سٹیشنز کی حتمی فہرستیں ہیں وہ تمام ضلعی الیکشن کمیشن کے دفتران کو باہر جاری کر دی جائیں گی۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کل پاکستان ٹیلی ویژن سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں اور بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ فہد جاوید۔ آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعت کی انتخابی مہم سے ملک بھر میں بالخصوص پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن 2013 میں وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کی تھی، جبکہ الیکشن 2018 میں یہ وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے سے قاصر رہی تھی۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں کس جماعت کا پلڑا بھاری رہے گا، یہ تو الیکشن کے انعقاد کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ ہم یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی 2013 اور 2018 کے عام انتخابات میں کارکردگی کا جائزہ پیش کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ ایک بات کا خیال رہے کہ 2018 کے الیکشن میں میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے پائے تھے۔
आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान की इस अहम तरीन सियासी जमात की कारकर्दगी क्या रहती है, इसके लिए पोलिंग डे के बाद नताइज तक इंतजार करना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में आइंदा होने वाले आम इंतखाबात मुल्क के 12वें इंतखाबात होंगे। 1970 से लेकर अब तक होने वाले आम इंतखाबात में किस सियासी जमात की क्या पोजीशन रही है, इसी हवाले से आपको दिखाते हैं इलेक्शन सेल की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, दिसंबर 1970 में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बराह रास्त आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ था। उन इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करार दिया जाता है। आदाद शुमार के मुताबिक इंतखाबात में 63% वोटर्स ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया और मजमूई तौर पर 24 सियासी जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। अगर हम उस वक्त की कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हासिल करदा सीटों की तादाद थी 80 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यूम ने 9 सीटें हासिल की। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काउंसिल की बात करते हैं, उसकी हासिल करदा सीटों की तादाद थी 7। 1970 के बाद 1977 के इंतखाबात हुए थे। कौमी असम्बली के इलेक्शन 7 मार्च और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का इनेकाद 10 मार्च को करार पाया। इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त से दो चार करने के लिए पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA तश्कील पाया था। अगर हम कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशन की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हासिल करदा सीटों की तादाद रही 155, जबकि PNA ने 36 सीटें हासिल की। कौमी असम्बली के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने 10 मार्च को होने वाले सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बायकॉट कर दिया और ये इंतखाबात अधूरे ही रह गए। 1977 के बाद 1985 के इंतखाबात हुए, मगर ये इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हुए। नवंबर 1988 में होने वाले आम इंतखाबात में एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फाते रही और बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। यहाँ पर अगर पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हासिल करदा सीटों की तादाद थी 94 और इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद की सीटों की तादाद थी 56, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 40 नशिस्तें समेटी। 1990 के इंतखाबात की बात करें तो जब आम इंतखाबात 1990 में हुए तो IJI का पलड़ा भारी रहा। उन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लिया। इस इत्तेहाद को PDA यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया गया था। यहाँ पर अगर हम पार्टी पोजीशन की बात किया करें तो ये कुछ इस तरीके से बनती है। IJI की हासिल करदा सीटों की तादाद थी 106, जबकि PDA की हासिल करदा सीटों की तादाद रही 44 और आज़ाद उम्मीदवार भी 22 सीटें हासिल करने में कामयाब रहे। 1990 के इंतखाबात के नतीजे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पहली मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। अक्टूबर 1993 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात की बात की जाए तो दोनों बड़ी पार्टियों के माबैन मुकाबला काफ़ी सख्त रहा, ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोलिशन हुकूमत कायम की। यहाँ अगर हम पार्टी पोजीशन देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 89 सीटें हासिल की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटों की बात की जाए तो वो थी 73, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की हासिल करदा सीटें थी 16। 1997 के आम इंतखाबात में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की इंतखाबी तारीख में पहली मरतबा कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करते हुए हुकूमत कायम की। 1997 के इलेक्शन में पार्टी पोजीशन कुछ इस तरीके से रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 137 नशस्तों पर कामयाबी समेटी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हासिल करदा सीटों की तादाद थी 18 और 21 आज़ाद उम्मीदवार भी यहाँ पर कामयाब करार पाए। 1997 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत भी अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल ना कर सकी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 के इलेक्शन अपनी निगरानी में करवाए। 2002 के बाद 2008 में आम इंतखाबात हुए और इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत साजी की और यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इन इंतखाबात में पार्टी पोजीशन कुछ इस तरीके से नज़र आती है। अगर नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशस्तों समेत 121 सीटें हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नून की हासिल करदा सीटों की तादाद थी 92 और मुस्लिम लीग काफ भी यहाँ पर 54 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। मई 2013 में आम इंतखाबात हुए।
ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی اور میاں محمد نواز شریف تیسری بار مملکت خداداد کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2013 میں تشکیل پانے والی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن پر نظر دوڑائی جائے تو وہ کچھ یوں لگتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہاں پر 126 نشستیں حاصل کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں صرف 34 سیٹیں آئیں اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلی مرتبہ 28 سیٹیں حاصل کیں۔ ناظرین، عام انتخابات 2024 کے لیے مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ الیکشن کے بعد کس جماعت کا پلڑا بھاری رہے گا یہ تو 8 فروری کے بعد ہی معلوم ہوگا، لیکن ہم نے یہاں مسلم لیگ نون کے 2013 اور 2018 کے عام انتخابات میں کارکردگی کا ایک احاطہ کیا ہے، جائزہ لیا ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے جو 3 مرتبہ براہ راست انتخابات جیت کر وفاق میں حکومت سازی کر چکی ہے۔ اس سیاسی جماعت کی گزشتہ 2 انتخابات میں کارکردگی کس طرح کی رہی، یہاں ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ 2013 اور پھر 2018 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نے مجموعی ووٹ کا کتنے فیصد لیا اور حاصل کردہ ووٹوں میں فرق کیا رہا۔ 2013 میں مسلم لیگ نون نے مجموعی ووٹوں کا 32% حاصل کیا، جبکہ دیگر تمام جماعتوں نے 68% ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح 2018 میں مسلم لیگ نون نے مجموعی طور پر 23% ووٹ حاصل کیے، جبکہ دیگر جماعتوں نے 77% ووٹ حاصل کیے۔ یوں 2013 کی نسبت گزشتہ الیکشن میں مسلم لیگ نون نے 10% ووٹ کم لیے۔ اگر 2013 اور 2018 میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر قومی و 4 صوبائی اسمبلیوں سے کل امیدواروں، قومی و صوبائی اسمبلیوں سے حاصل کردہ سیٹوں اور قومی و صوبائی اسمبلیوں سے حاصل کردہ ووٹوں کا جائزہ لیں تو 2013 اور 2018 میں فرق کچھ یوں سامنے آتا ہے۔ 2013 میں قومی و صوبائی اسمبلیوں میں کل امیدوار 680، 2018 میں قومی و صوبائی اسمبلیوں میں کل امیدوار 650 تھے، جبکہ 2013 میں قومی و صوبائی اسمبلیوں کی حاصل کردہ سیٹیں 361، جبکہ 2018 میں 200 سیٹیں تھیں۔ 2013 اور 2018 میں قومی اسمبلی سمیت 4 اسمبلیوں میں حاصل کردہ نشستیں کیا رہی تھیں، یہ جائزہ یوں سامنے آتا ہے۔ 2013 میں قومی اسمبلی میں حاصل کردہ نشستیں 126، پنجاب اسمبلی میں حاصل کردہ نشستیں 212، خیبر پختونخوا اسمبلی میں حاصل کردہ نشستیں 12، سندھ اسمبلی میں حاصل کردہ نشستیں 3، بلوچستان اسمبلی میں حاصل کردہ نشستیں 8، جبکہ 2018 میں قومی اسمبلی میں حاصل کردہ نشستیں 64، پنجاب اسمبلی میں حاصل کردہ نشستیں 130، خیبر پختونخوا اسمبلی میں حاصل کردہ نشستیں 5، سندھ اسمبلی میں حاصل کردہ نشستیں 0، بلوچستان اسمبلی میں حاصل کردہ نشستیں 1۔ ایک بات کا خیال رہے کہ 2018 کے الیکشن میں میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے پائے تھے۔ آنے والے الیکشن میں پاکستان کی اس اہم ترین سیاسی جماعت کی کارکردگی کیا رہتی ہے، اس کے لیے پولنگ ڈے کے بعد نتائج تک انتظار کرنا ہوگا۔ ڈیٹیلڈ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو لیے چلیں گے کوئٹہ کی جانب۔ کوئٹہ الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواروں میں انتخابی نشانات الاٹ ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے اسرار احمد سے۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا کوئٹہ کے حوالے سے۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواروں کے انتخابی نشان الاٹ ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اسی طرح بات کریں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی جوڑ توڑ کی، اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف اور نیشنل پارٹی کی جو سربراہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے درمیان ملاقات ہوئی اور بلوچستان میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مذاکرات طے پا گئے ہیں۔ اسی طرح بات کریں پی بی 37 سے محمد خان شاہوانی آزاد امیدوار ہیں، ان کی حمایت بلوچستان نیشنل پارٹی نے کی، جبکہ محمد خان شاہوانی نے این 261 سے سردار اختر مینگل کی حمایت کی ہے۔ اسی طرح بات کریں میر لیاقت لیڈی کی بھی حمایت بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی نے کر دی ہے، جبکہ کچی پی بی 12 کی اگر ہم بات کریں یہاں سے بھی ہمیں ایک کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گی، جس میں سابق صوبائی وزیر خزانہ عاصم کرد گیلو اور سابق صوبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رند اور یونس سمالیانی کے درمیان ایک کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح آزاد امیدوار بھی ان کی حمایت میں دستبردار ہو رہے ہیں۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کی طرف سے آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے جنرل نشستوں کے لیے 22 خواتین بھی میدان میں ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سعید وزیر۔ ملک میں آئندہ عام انتخابات کے لیے
1 माह से कम वक्त रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा में जहां बड़े बड़े सियासतदान मैदान में हैं, तो वही इस बार खवातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल पार्टी ने खवातीन को टिकट जारी किए और 10 खवातीन तीर के इंतखाबी निशान से मर्द उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबिल हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने 7 और जमात इस्लामी ने 5 खवातीन उम्मीदवारों को जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन के मैदान में उतारा है। 2024 के इंतखाबात में हम देख रहे हैं तमाम सियासी जमातों ने बड़ी तादाद में खवातीन को मैदान में उतारा है, जहाँ पर मरियम नवाज को एक साइड पे देख रहे हैं, दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की भी बेतहाशा उम्मीदवार है वो इस वक्त मैदान में। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी ने भी खैबर पख्तूनख्वा में, इसके अलावा जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों ने भी बड़ी तादाद में खवातीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की जानिब सबसे अच्छा कदम है। हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर सवीरा प्रकाश भी PK 25 बनेर से तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ रही हैं। फर्स्ट स्टेप जब तक किसी ने नहीं लिया होता तब तक रिस्पांस का नहीं पता चलता। मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया है, तो इसलिए होपफुली कि आगे विमेन और यूथ पार्टिसिपेशन स्पेशली पॉलिटिक्स में ज़्यादा हो जाएगी और हमारी कंट्री स्टेबिलिटी की तरफ जा सकेगी। बस मुझे शौक है, जुनून है कि मैं कुछ करूं अपने इलाके के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने फीमेल के लिए, अपने फीमेल राइट्स के लिए। बस इसी वजह से मैं निकली हूँ। खवातीन ने पाकिस्तान की सियासी उफक पर हमेशा एक मुतहरिक और बाअसर किरदार अदा किया है। अब देखना यह है कि इस बार खवातीन किस हद तक कामयाब हो पाएगी। सईद वजीर, PTV न्यूज़। इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तो आपने देखी। यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं आलमी इक्तिसादी फोरम से, जिसका 54वां सालाना इजलास स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में जारी है। एतमाद की बहाली के मौजू पर होने वाले इजलास में मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान, आलमी इदारों के नुमाइंदे, मुमताज़ कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के अरकान शिरकत कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आलमी इक्तिसादी फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन के वादे के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। मुख्तलिफ हुकूमती और कारोबारी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी वज़ीर आज़म के शेड्यूल में शामिल हैं। इजलास का मकसद एतमाद के बुनियादी उसूलों, शफाफियत, हम आहंगी और जिम्मेदारी पर तबादला ख्याल करना है। गजा और यूक्रेन में जंगों के खात्मे के लिए बातचीत को भी एजेंडे में रखा गया है। शरह सूद की पॉलिसियों में तब्दीली और बढ़ते हुए कर्जों के चैलेंज से निपटने पर भी इजलास में गौर होगा। आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में कई सरबराहान मुमलिकत और कारोबारी शख्सियात शिरकत कर रहे हैं। फोरम के मौके पर डेवोस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। निगरान वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने स्विट्ज़रलैंड में आलमी इक्तिसादी फोरम इजलास के मौके पर बैनुल-अक़वामी इदारों, आलमी तंजीमी ओहदेदारान से अहम मुलाकातें की। डॉक्टर उमर सैफ ने इन मुलाकातों में डिजिटल पाकिस्तान ब्रांड आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए अपनी कोशिशों पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टार्टअप्स फंड में ताउन रुकन ममालिक के माबैन मुश्तरका क्लाउड सर्विसेज फराहम पेशरफ्त मुतवक्किल है। इन मुलाकातों में पाकिस्तान में सरकारी और निजी सतह पर मसनूई ज़हानत के बेहतर इस्तेमाल के लिए दो तरफा ताउन पर इत्तफाक किया गया। डॉक्टर उमर सैफ ने वजारत IT और गूगल के इश्तराक से पाकिस्तान में जारी मंसूबों से भी आगाह किया। इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर के निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी का है कहना कि निगरान हुकूमत ने IT के शोबे को फरोग देने के लिए 2 अरब रुपए का पहला पाकिस्तान स्टार्टअप फंड बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि पाकिस्तान में जिद्दत के हामिल मकामी हल तैयार करने पर तवज्जो मज़कूर करने की बहुत सलाहियत मौजूद है। मज़ीद तफसील मलिक उमर से। मसाइल की शनाख्त के उन्वान से 2 रोज़ा सिविक हैकाथॉन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सरकारी शोबे की तरफ से अक्सर मसाइल की शनाख्त तनहा की जाती है। उन्होंने कहा कि मसाइल से मुतल्लिक ये कॉन्फ्रेंस और सिविक हैकाथॉन ज़्यादा पायदार नताइज फराहम करने में मावन साबित होंगे। In Pakistan, there's still a lot of potential to focus on developing innovative local solutions. However, the problems are often identified in isolation by the public sector. Thus, I believe that this more participatory approach of conducting a problem identification conference and later a civic hackathon will provide more sustainable
results. निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि निगरान हुकूमत ने IT के शोबे को फरोग देने के लिए 2 अरब रुपए का पहला पाकिस्तान स्टार्टअप फंड बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है स्टार्टअप इकोसिस्टम में कम अज कम 50 अरब रुपए सालाना हासिल होंगे। The caretaker government of Pakistan has officially launched the first ever Pakistan Startup Fund worth rupees 2 billion to propel IT innovation. Our government hopes to create a value of at least rupees 50 billion per year in Pakistan's startup ecosystem. Pakistan boasts a network of 8 national incubation centers, NICs, supporting startups with over 4,000 startups currently active in the country. निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस मुल्क के सबसे अहम तरीन शहरी मसाइल की इज्तमाई तौर पर निशानदेही के लिए सरकारी और निजी शोबे के माहिरीन और सिविल सोसाइटी को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास चीदानी कल से 22 जनवरी तक युगांडा का दौरा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा कंपाला में गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक सरबराहान ममलकत के 19वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि 21 से 22 जनवरी को होने वाले तीसरे जनूबी सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोनों सरबराही इजलास मेंबरान के लिए आलमी, इलाकाई, सियासी और समाजी इक्तिसादी मसाइल पर गौर करने का मौका फ्राहम करते हैं। तर्जुमान का मजीद कहना है कि सरबराही इजलास में निगरान वज़ीर ख़ारजा बैनुल-अक़वामी अमन, सलामती और तरक्की से मुतालिक मकामी और असरी आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। दोनों सरबराही इजलासों के मौके पर वज़ीर ख़ारजा की दीगर शरीक ममालिक के वफूद के सरबराहान से भी 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के हैं। और यहाँ पर एक अच्छी खबर आपको देते हैं कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बावजूद हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। वजारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे से हो गया। इस्लामाबाद के शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी पर मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा है कि गरीब आवाम के लिए यह किसी रिलीफ से कम नहीं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के नतीजे में दीगर अशिया के निर्ख भी कम किए जाने चाहिए। 8 रुपये में तो फ़र्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गरीब बंदा, गरीब जो लोग हैं उनके लिए, जिनके लिए मुश्किलात है, उनके लिए 1 रुपया भी कीमती होता है ना। और भी कम करनी चाहिए, और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई डीजल की कीमत भी कम की जाए। मैनेजमेंट होनी चाहिए, कमेटीज़ होनी चाहिए जो बनी हो, जो मार्केट में विजिट करके, जो जब पेट्रोल महंगा होता है तो प्राइसेस जाती हैं ऊपर, जब पेट्रोल नीचे आता है तो प्राइसेस नीचे नहीं आती। मेरे हिसाब से तो आना चाहिए 100-150 पे आना चाहिए। मजीद इससे अब नीचे जितनी कमी कर सकते हैं वो बेहतरी होगी। तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बाकी जो ज़रूरतमर्रा की अशिया हैं उसमें अगर कमी कर दें तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। सवारी लेके जाते हैं तो हमें तो बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ गया है अभी, तो हम कहते हैं और थोड़ा कम हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, ये नहीं है कि बुरी बात है, लेकिन चीज़ों को भी साथ लाजमी इसमें रखना चाहिए। गरीब आदमी को फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब चीज़ें सस्ती होंगी। जिनके लिए अफोर्डेबल है वो 400 रुपये लीटर भी अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और जिनके लिए नहीं है वो बेचारे 150 भी नहीं कर पाते। निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में नुमायां कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में कमी को शहरी किस तरह से देख रहे हैं, इसी हवाले से लाहौर से बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद अपनी रिपोर्ट में। जी, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने के लिए निगरान हुकूमत ने मुल्क में भी पेट्रोल की कीमत में कमी की है। गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी की गई थी, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 259 रुपये 34 पैसे पर आ गई है। सिर्फ आपको ये बता दूं कि हमारे पास टोटल JN1 के केसेस जो पॉजिटिव हुए हैं टेस्ट करने के बाद वो 7 हैं, जिसमें से 2 एयरपोर्ट से जो टेस्ट हुए थे वो पॉजिटिव आए और 5 जो हैं वो इंडिजिनस हैं, जो आगा खान के जो एडमिटेड पेशेंट्स थे वहाँ पे पॉजिटिव आए। इसके बारे में कुछ टेक्निकल डिटेल्स जो है मैं डॉक्टर फैसल महमूद से
रिक्वेस्ट करूँगा ताकि वो बताएं कि इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है और हमें क्या एहतियात और किस किस्म की जो है अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस की ज़रूरत है। फैसल, I'll pass that over to you. थैंक यू। सो पहली बात तो ये है कि परेशान होने की बात नहीं है। कोविड का वायरस जो है वो चेंज होता रहता है, ये तो हमने कई सालों से देखा है। और ये JN1 जो है ये भी सॉर्ट एक नया वेरिएंट ही है इसका। ये इवन दो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि इसके केसेस जो हैं वो ज़्यादा शदीद होंगे या शिद्दत इख्तियार करेंगे। तो हरगिज़ ऐसा आई डोंट थिंक होगा कि जैसे पिछले सालों में एकदम से केसेस बहुत बढ़ गए थे, प्रॉबेबली नहीं होगा। और होगा भी तो दाखिले या अमात की शरह में इतनी इजाफा होने के चांसेस बहुत कम है। इस वजह से WHO ने भी इसको थ्रेट लो ही ज़ाहिर किया है। प्रिकॉशन जो सिंपल यही है कि अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं हुई है और आपको आपकी उम्र ज़्यादा है यानी 65 से ज़्यादा है या आपको दीगर और मेडिकल मसले हैं तो फिर आपको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत होगी। और वैक्सीन जो है वो आखिरी वैक्सीन का अगर आपको 1 साल से अगर ऊपर टाइम हो गया तो फिर लगाने की ज़रूरत है। और वो वैक्सीन भी हम कोशिश करें कि वो उसकी अवेलेबिलिटी दोबारा से हो जाए। कोविड की इलाज में भी तब्दीली आई है और अब हमारे पास दवाइयाँ भी हैं जो कि हम दे सकते हैं अगर कोविड के पहले के 3 से 4 दिनों के अंदर ये इसकी डायग्नोसिस हो सके। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर खालिद नियाज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि मुल्तान के शहरियों ने भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार देते हुए दुरुस्त और बरवक्त इक़दाम करार दिया है। सस्ता हो गया जी, ठीक है, हमारा फायदा हो गया जी। हम पहले 400 का डलवाते थे, अब माशाल्लाह 300 का डलवाते हैं, हमारी रोज़ी सही लग जाती है। अच्छी बात है, चलो खुशी की बात है कि पेट्रोल कम हुआ है। अल्लाह ताला और अच्छे मामलात करे। हुकूमत इसी तरह हमारे को रिलीफ देती रहे, जिस तरह भी इन्होंने 8 रुपये कम किए हैं जी, और पैसे कम करें पेट्रोल तकरीबन, और पेट्रोल का रेट कम, और चीज़ों में भी रेट कम करें ताकि आवाम को सहूलियात मिले। इस दौर में जो रिलीफ मिला है हमें हुकूमत की तरफ से मेहरबानी है, बाकी मज़ीद अगर रिलीफ मिलता रहे तो अच्छा है। निगरान हुकूमत है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अल्लाह करे कि आने वाली मुंतखब हुकूमत भी इसी तरह आवाम की फलाह के काम करे। गौरमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है सर। तो पहले तो तकरीबन 300 तो अबव हो गया सी रेट, हुण तकरीबन 260-70 ते आ गया सर। मजीद अगर काम कर दें तो इन्हां दी मेहरबानी है, मजीद सस्ता हो जाए, जिससे ये है कि हम समेत जितने भी हमारे गरीब लोग हैं और जो हमसे छोटे जो नहीं डलवा सकते इस चीज़ को, नहीं है अफोर्डेबल, तो उनके लिए मजीद बेहतर हो जाएगा। पेट्रोल की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं, जैसे कपड़ा, इलेक्ट्रिक चीज़ें, काफ़ी सारे मोबाइल, हर चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी के इक़दाम का रहीम यार खान की अवाम ने खैर मकतब किया है। अवाम का कहना है कि हुकूमती रिलीफ इक़दामात से माली मुश्किलात में कमी आएगी। तफसील बता रहे हैं अशफाक अहमद। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है। आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे हो गई है। जो चीज़ जितनी कम आएगी उतने ज़ाहिर आवाम के अखराजात कम होंगे, उसको रिलीफ मिलेगा, वो आसानियाँ पैदा होंगी। बिल्कुल रिलीफ मिला है, आने वाली गवर्नमेंट भी रिलीफ देती रहे। मेहरबानी है गवर्नमेंट दी, जरा सारे नाल कुछ ना कुछ ताउन हो रहे। अच्छी बात है, पेट्रोल सस्ता किया, डीजल भी करे, मिट्टी का तेल भी करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। जो इन्होंने किया है अच्छा किया है हुकूमत ने, आने वाली हुकूमत को भी इसमें बेहतरी करनी चाहिए। पेट्रोल की कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुँच रहा है। शहरियों ने निगरान हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। निगरान हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी के इक़दाम को अवाम की जानिब से सराहा गया है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा इस वक्त लोधरा में पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी अब्दुल्ला डाहा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की जो कीमतें कम की गई हैं, अवाम इसको किस नज़र से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली और रुपए की कदर में इजाफे से आवाम के लिए पेट्रोल की कीमत पर बड़ा रिलीफ दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी के साथ अब पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे मुकर्रर की गई है। निगरान हुकूमत के इस इकदाम को लोधरा की आवाम ने खूब सराहा है। हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है, 8 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि पेट्रोल में कमी आई है, मजीद इससे भी कमी आनी चाहिए क्योंकि गरीब आवाम के लिए जो है ना सहूलत होनी चाहिए। कीमतों में नुमाया कमी होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी आई है, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिला है। जी बुलेटिन में आगे चलकर आपको अपडेट करेंगे फलस्तीन की सूरत हाल से भी, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के साथ मैं हूँ नाज़िया कमल। सबसे पहले बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल की। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 132 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 24,100 से तजावज़ कर गई, जबकि 60,800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। सिहोनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों पर ज़िंदगी तंग कर दी है। भूख, अफलास और सख्त सर्दी की वजह से मज़लूम फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। गज़ा के इलाकों खान यूनिस और रफ़ा पर सिहोनी फ़ौज की रात भर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद हो गए, जिनमें स्कूलों के बच्चे और बेघर फ़लस्तीनी शामिल हैं। बमबारी से मवासलाती कंपनी के 2 मुलाजिमीन भी जान की बाजी हार गए, जिसके बाद कंपनी ने अपनी सर्विस बंद कर दी है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज के मज़ालिम जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई में 5 नौजवानों को शहीद और 25 से ज़्यादा तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूदा अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का दस्ता लाहौर पहुँच गया है। पाकिस्तान की जानिब से आला फ़ौजी हुकाम ने एयरबेस पर सऊदी फोर्सेस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों अफ़वाज मुश्तरका मशक़ी तरबियत ओकाड़ा गैरिजन और खैरपुर टामेवाली में करेंगी। मुश्तरका मशक़ी तरबियत 45 दिन तक जारी रहेगी। इन मुश्तरका मशक़ों का मकसद एक जामे तरबियती प्रोग्राम के ज़रिए अस्करी तरबियत, हुनर और महारत को आपस में बांटना है। कुछ बात करेंगे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता बरस 60 लाख मुसाफिरों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस्तेमाल किया। ये तादाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट फ़ाल होने के बाद से सबसे बड़ी तादाद है। 11,000 मकामी परवाज़ों के ज़रिए 15 लाख, जबकि 20,000 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के ज़रिए 45 लाख मुसाफिरों ने एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। गुज़श्ता बरस इस्लामाबाद एयरपोर्ट ने 31,000 परवाज़ों और 60 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को हैंडल किया। एयरपोर्ट आने वाले मुलाकातियों की तादाद मुसाफिरों की कुल तादाद से कम 3 गुना ज़्यादा है। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ताहिर अब्बास सिपरा ने साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ 6, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जमानत के एक मुकदमे पर समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। मुल्ज़मान के वकील सलमान सफदर पेश नहीं हुए। अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI को अभी तक शामिल तफ्तीश न करने पर तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी किया। अदालत ने केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी करते हुए हुक्म दिया कि अगली समाअत पर बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल को यकीनी बनाया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सूबाई वज़रा के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल गुजरांवाला का दौरा उन्होंने किया और अस्पताल में अपग्रेडेशन के कामों और तामीराती सरगर्मियों पर होने वाली पेशरफ्त का मुआयना किया। वज़ीर आला ने बेड्स और दीगर सामान को बाहर पड़ा देखकर नाराज़गी का इजहार करते हुए इंतज़ामिया की सरजनिश की और इंतज़ामिया को फौरी तौर पर सामान को महफूज जगह पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन के काम को हर सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि काम के मयार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए गंगाराम और जनरल अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आला ने गंगाराम अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स और दीगर शोबों में काम पर पेशरफ्त का मुशाहिदा किया और 31 जनवरी तक अस्पताल की अपग्रेडेशन को मुकम्मल करने की भी हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन के कामों में मयार को यकीनी बनाने और काम में तेज़ी लाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा कि पूरी कोशिश है कि मंसूबे वक्त से पहले मुकम्मल हों और आवाम को सहूलत मिल सके। नाज़रीन, 15 जनवरी तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,68,000 से ज़ायद हो चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ जाने वाले 778 अफगान शहरियों में 214 मर्द, 143 ख़वातीन और 421 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 42 गाड़ियों में 72 ख़ानदानों की वापसी अपने वतन अमल में लाई गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तोरखम बॉर्डर पर तिजारती गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए भी पाकिस्तान में दाखिले के लिए वीज़ा लाजमी करार दे दिया गया है।
इससे पहले ड्राइवर्स सिर्फ पासपोर्ट के साथ ही पाकिस्तान में दाखिल हो सकते थे। तोरखम बॉर्डर पर दोनों ममालिक के हुकाम ने गुज़श्ता दिनों मुलाकात में कानूनी तौर पर आमदोरफ्त के लिए सफरी दस्तावेजात पर मीटिंग की और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि दोनों ममालिक से आमदोरफ्त के लिए पासपोर्ट और वीज़ा होने चाहिए। इन अहम इक़दामात का मकसद कानूनी तौर पर तिजारत को मुस्तहकम करना, सिक्योरिटी में बेहतरी और स्मगलिंग की रोकथाम है। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें ये बताया कि अपने असली कागजात के साथ, असली कागजात सही सनद के साथ इधर आगे आपको छोड़ देंगे। हम इसके साथ खड़े हैं, हम ये फैसले से खुश हैं। हुकूमत पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा इस इक़दाम में, हम इसके साथ खड़े हैं। पहले ड्राइवर्स जो है ना सिर्फ पासपोर्ट पे इनको अलाउ करते थे इन आउट, और अब चूंकि वीज़ा इस पे इम्प्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने, तो ये एक अच्छा स्टेप्स है। इससे ट्रेड को भी फ़ायदा होगा और आवाम को भी फ़ायदा होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जितने भी ड्राइवर हैं वो वीज़ा के साथ पाकिस्तान आएगा, तो इनसे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी ड्राइवर हैं उसके सारे रिकॉर्ड हमारे साथ अवेलेबल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान मुंका पासपोर्ट वीज़ा ओरिजिनल कागज़ों नवेली दी, जो उम्मीद कोम چې دا په دې کې به موږ ته فایده وشي، پاکستان ته هم فایده وشي، افغانستان ته هم فایده وشي، تاجران ته هم فایده وشي. په دې اقدامات باندې موږ ډېر خوشاله یو چې دا کاروایي صحیح طریقې سره وشوله. په دې باندې موږ خوشاله یو چې دا موږ ته وشي. دا کیسه روانه ده، ایزی پاسپورت دا ښه خبره ده. پاکستان ته ښه ده، افغانستان ته ښه ثبوت راکنه کوم تجارت مجرد کیسې دا وخت صحیح شي، دا ښه خبره ده. دا وشي دا خبره ایزی پاسپورت والا मुताल्लिका हुकूमती इदारों का मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 31 दिसंबर से 7 जनवरी के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 26 अफराद गिरफ्तार और 3,929 किलो मुनशियात जब्त की जा चुकी हैं। 1 सितंबर से अब तक मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मुल्क भर से 8,19,388 किलो मुनशियात बरामद और 716 मुजरिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क भर में इंसदाद मुनशियात के ऑपरेशन कामयाबी से जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। नाज़रीन, मोदी सरकार को एक बार फिर बगैर पायलट जहाज UAV की नाकामी की वजह से मुंह की खाना पड़ी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में शुरू होने वाला तापास मंसूबा 1650 करोड़ रुपए में 2016 में मुकम्मल होना था। भारतीय हुकूमत ने यह दावा किया कि ताप्स जहाज 24 घंटे तक 30,000 फुट तक की ऊंचाई पर चलने के काबिल होगा। ताहम 1,786 करोड़ रुपए के बाद भी तापस प्रोजेक्ट बार बार ताखीर के बायस 14 जनवरी 2023 को बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया है कि तापस जहाज इंजन के मसाइल के बायस 10 साल से जायद अरसे तक ताखीर का शिकार रहा। मंसूबे की नाकामी पर दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से मोदी हुकूमत और भारतीय फौज पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। भारतीय अवाम का अरबों रुपए डुबोने वाला अर्जुन टैंक और 50 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका, जिसे 2021 में बंद करना पड़ा था। भारत का तेजा जहाज भी 3 दिहाइयों के तवील अरसे के बाद मुकम्मल न हो सका, जिसे शर्मिंदगी के बायस बंद करना पड़ा। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला भारतीय अदलिया के दायरे इख्तियार में नहीं आता। मुजफ्फराबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 और 35A से मुतालिक फैसला सुनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम के हुकूक को गसब किया है। इस मौके पर दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आइन से तजावुज़ किया है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है। आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे से मसला कश्मीर ख़त्म नहीं हो सकता। पाक बहरिया की जानिब से बलूचिस्तान के साहिली कस्बे कपर में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों को मुफ्त मुआयने और अद्वियात की सहूलियात फराहम की गईं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मेडिकल कैंप का इनेकाद पाक बहरिया की जानिब से साहिली इलाकों के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जारी इक़दामात की एक कड़ी है। पाक बहरिया मुस्तकबिल में भी साहिली इलाके के अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। और नाज़रीन, सरज़मीन पाकिस्तान की मिट्टी में लातादाद शहीदों का खून शामिल है, जिन्होंने वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। गाज़ियान पाकिस्तान ने जान की परवाह न करते हुए दिफाए वतन में अपना तन मन कुर्बान कर दिया। इन शेरों और गाज़ियों में हरीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिलरी कोर के सिपाही मोहसिन खान भी शामिल हैं। सिपाही मोहसिन खान ने 1 और 2 फरवरी 2012 की दरमियानी शब डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी एक टांग की
कुर्बानी दे दी। मेरा नाम सिपाही मौसम खान है, मैं हरीपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 2010 में पाकिस्तान आर्मी की अटली कोर में शमूलियत हासिल की। सन 2012 में मैं अपनी यूनिट के हमरा डेरा इस्माइल खान में तैनात था। 1 और 2 फरवरी 2012 की दरमियानी शब डेरा इस्माइल खान कोलाची के इलाके में हमें दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात मसूल हुई और हमें ऑपरेशन का आर्डर मिला। दौरान ऑपरेशन मुझे और मेरी टीम को आउटर गार्डन लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हम आउटर गार्डन लगा रहे थे तो दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मुझे गोलियां लगी और जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द जख्मी हुए और हमने कामयाब ऑपरेशन करते हुए 10 दहशतगर्दों को पकड़ लिया। चूँकि मेरी टांगों में ब्रश लगा हुआ था, जिसकी वजह से खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, मुझे CMH DI खान मुंतकिल किया गया। मैं पाक आर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया है। इसके अलावा दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मेरी दी जाने वाली कुर्बानी और बहादुरी दलेरी को देखते हुए 23 मार्च 2013 को मुझे तमगा बसालत से नवाजा गया। बहुत बड़ा माँ फखर है जी, मेरे बच्चे थे, मेरा बच्चा गाजी भी है, शहीद भी औजलिया थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रजा है, असा बड़ा फखर है। फौज हस्ते सारी मुल्क हस्ते साड़ी अपनी जान दिया कर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी दा लाख करोड़ शुक्र। मैं अपने बच्चे ते फखर है कि जेड़ा मेरे बच्चे ने मुल्क की खातिर कुर्बानी दी अपनी टांग। फखर था कि मैं गाजी की बीवी होंगी जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। कुछ बात करेंगे टंडो मोहम्मद खान के नौजवान आर्टिस्ट बाबर अजीमी की, जो शीशे की बोतलों के अंदर तस्वीर बनाने का हुनर रखते हैं। इस मुनफरिद फ़न के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है हमारे नुमाइंदे जमील मेमन ने, मुलाहिजा कीजिए। टंडो मोहम्मद खान से तल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट बाबर अजीमी ने शीशे की बोतलों के अंदर तस्वीर बनाकर बेपनाह मकबूलियत हासिल कर ली है। बाबर अजीमी पेंटिंग ब्रश की मदद से शीशे की बोतलों के अंदर आर्ट बनाते हैं। उन्होंने शीशे की बोतलों में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान और दीगर अहम शख्सियात की तस्वीर बना रखी हैं। मेरी आदत थी कि कोई भी चीज़ अगर बनाना चाहता था तो मैं कोशिश करता था कि इसको बार बार ट्राई करूं। तो वही लगन लेके मैं पहले एक बोतल ली, उसमें कुछ हद तक मैं यानी मुझे एक रिज़ल्ट मिली कि हाँ इसमें इससे स्केच बन सकता है। फिर जहन में आया कि ब्रश को थोड़ा और कर देना है, तो उसमें एक पूरे इमेज का स्ट्रक्चर बना के उसमें यानी कलर लगाना एक बड़ा मुश्किल होता था। जिस पर्सनैलिटी की बना रहे हैं उनकी एक पहचान भी हो उसमें, कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है, अल्लामा इकबाल की, मदर टेरेसा की है। इस तरह मैंने काफ़ी सारे लातेदाद जो है पोर्ट्रेट बोतल के अंदर बनाने की। बाबर अजीमी न सिर्फ शीशे की बोतलों के अंदर तस्वीर बनाने का हुनर रखते हैं, बल्कि उनके हाथ से बने फनपारों को भी दुनिया भर में भरपूर पजीराई हासिल हुई है और उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बाबर अजीमी ने अपने मुनफरिद आर्ट के ज़रिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ताहम ऐसे नौजवान की अगर हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई की जाए तो उन्हें अपने फ़न का दायरा कार बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। जमील मेमन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ कासिम अली। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाई रहेगी। खित्ता पठवार में रात के औकात में बाज़ मकामात पर धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहा। गुज़श्ता रात और आज सुबह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद धुंध छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूँ रही। लह में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -7, गोपस -5, गिलगित -4, जबकि पारा चिनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।